ये जो मासूम से चेहरे वाले नेताजी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते, हासन सीट से सांसद और मोदी परिवार के सदस्य प्रज्वल रेवन्ना हैं। इनकी 3000, जी हाँ 3000 से अधिक पॉर्न वीडियोस वायरल हो रही हैं। इन महिलाओं में पार्टी की कार्यकर्ता, घरेलू महिलाएं, सांसद, जिला पंचायत तक की महिलाएं शामिल हैं। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एच.डी. कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। This gentleman right here is former Prime Minister H.D. Devegowda's grandson Prajwal Revanna. He is the MP from Hasan in Karnataka. He is also the joint candidate of Narendra Modi's BJP and its ally JDS. This man has been alleged and has been found on video, and not one and not two, but thousands of videos in which he is molesting women, in which he is doing heinous crimes against women and women from all age group. These women are domestic household workers who work at his house. They are party workers. They are his MPs. That's the kind of man he is. Thousands of videos, hundreds of women whose life have been destroyed by this man. A 63-year-old house help, a woman old enough to be his mother, maybe his grandmother, is seen pleading on one of the videos saying, "Don't do this to me. Don't record this. Don't do this to me." 63-year-old woman. And still, he is the joint candidate of Narendra Modi's BJP and his ally JDS. Did Mr. Modi not know about him? He knew every single thing. He knew exactly about the videos. He knew exactly who this guy was. He knew exactly the women who had been molested. Because on the 13th of December, 2023, his own leader, Devaraj Gowda, wrote to the Prime Minister and to the BJP President and to the local unit of the BJP, talking about the pen drives, talking about the sexual misconduct. In fact, in January 2024, the same leader, Devaraj Gowda, did a press conference which was in the public domain. He spoke about the sexual misconduct. He spoke about the molest. He spoke about those thousands of videos. And not just that, in February and March, when Amit Shah visited Mysuru to stitch that alliance, he was told by not one, but multiple BJP leaders, from Pritam Gowda to A.T. Ramaswamy to thousands of workers in the BJP, who told him, do not make Prajwal Revanna your candidate in Karnataka. Do not announce his candidature, because he is known to be a man who inflicts sexual violence on women. He is found to be inappropriately behaving with women on camera. These women are from different stratas of society. They belong to different age groups. And yet on the 14th of April, you find the Prime Minister sharing the stage with Prajwal Revanna. The Prime Minister doesn't just praise him, he asks for votes in his favor. That's who the Prime Minister is. Is this the first time that the Prime Minister has stood with perpetrators of crime against women? No. Will this be the last? I don't know about that. With Mr. Modi, you never know. This will perhaps not be the last. But it needs to be pointed out that the moment this was taken up by the Commission for Women in Karnataka, they issued a notice to the SP. They asked the government to set up an SIT, and SIT was set up. The very same day, this man absconded and ran away to Europe. We are looking at his extradition, and the SIT will ensure that he faces the whole might of Indian law. एक बेटी के साथ बलात्कार, सेक्सुअल हरासमेंट किया। सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक नहीं 1000 से अधिक हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ गलत काम किया है। हासन से जेडी
एसके सांसद जो भाजपा के अभी संयुक्त उम्मीदवार हैं प्रज्वल रेवन्ना, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महिला अपराध के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कांग्रेस पर परिवारवाद कह के हमला कर रहे हैं। परिवारवाद, तीन पीढ़ियां, और दूसरा नारा है बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इन दोनों नारों की पोल हमारा यहाँ पर ये परिवारवाद, ये है मोदी जी का परिवार, ये मोदी जी का परिवार है। ये मोदी जी के परिवार में आज ब्रजभूषण शरण, राम दुलारे, संदीप सिंह, ब्रजभूषण शरण के साथ साथ हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना का नाम भी जुड़ गया है। इन्होंने एक बेटी के साथ बलात्कार, सेक्सुअल हरासमेंट किया, लेकिन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक नहीं 1000 से अधिक हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ गलत काम किया है। में आपके सहयोगी जेडीएस के एक नेता रेवन्ना के कई आपत्तिजनक वीडियो का दावा कांग्रेस कर रही है और उसको लेकर आप लोग पर भी आरोप लगा रही है कि उनका बचाव कर रहे हैं। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा। बड़ी खबर आ रही है, सैकड़ों महिलाओं से यौन संबंध बनाने से लेकर कथित रूप से बलात्कार करने वाला प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता है और कर्नाटक के हसन लोकसभा सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रहा है। इस चुनाव में बीजेपी का पार्टनर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रज्वल के लिए वोट मांगे हैं। हम इस वीडियो में आगे बताएंगे कि राज्य की पूरी बीजेपी को पता था कि प्रज्वल का क्या रिकॉर्ड है। इसके हजारों वीडियो हैं, फिर भी बीजेपी के नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूर किया कि वे प्रज्वल को जिताने के लिए प्रचार करें। 2800 वीडियो इसके वायरल हो चुके हैं। हर दूसरे वीडियो में इसे अलग अलग उम्र की महिलाओं के साथ कथित रूप से यौन संबंध बनाते और बलात्कार करते हुए बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के बाद इन महिलाओं को ब्लैकमेल कर सके इसलिए रेवन्ना वीडियो भी बनाता था। यही नहीं, जिस महिला ने एफआईआर लिखवाई है उसने प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना का भी नाम लिया है। प्रज्वल का कहना है कि वीडियो नकली है, मॉर्फ किए गए हैं, लेकिन उसे भागने की क्या जरूरत थी, यहीं रहकर इसका सामना करता। मॉर्फ वीडियो है, इसे साबित करने में कोई 1 साल तो नहीं लगता, कम से कम समय में भी बताया जा सकता था। जेडीएस ने एसआईटी के गठन का स्वागत किया है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए।
इन तस्वीरों को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रज्वल रेवन्ना खड़ा है। इस तस्वीर में फुल परिवारवाद है, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से देश का टाइम खराब कर रहे हैं, बोल रहे हैं और यहां एक राजनीतिक परिवार के साथ गठबंधन करते हुए देखे जा सकते हैं, बल्कि फोटो भी खिंचाते हैं। यह परिवारवाद का क्लासिक फोटो है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा हैं, भगोड़ा और सांसद प्रज्वल रेवन्ना हैं, उसके पिता HD रेवन्ना है जो कर्नाटक सरकार में मंत्री थे, इस समय हासन जिले से विधायक हैं। प्रज्वल के भाई डॉक्टर सूरज रेवन्ना भी MLC हैं। इनकी मां भवानी रेवन्ना हासन जिला पंचायत की सदस्य रह चुके हैं। वो इस तस्वीर में नहीं है, लेकिन इस तस्वीर में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मतलब परिवारवाद के खिलाफ दिन रात भाषण देने वाले चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।